Good afternoon, guys. You all can hear me? Great. You all can see the screen? Yes, sir. So, guys, let us wait 2 more minutes, then we'll start. Let everyone join. So, guys, let us start the session now. So, this is your first question about RBI second schedule. Which of the following statements about RBI is true? Question is asking about second schedule of RBI Act 1934. Even if you don't know, feel free to take a guess and write your answers in the chat box.
So the answer is A. Let us see about this second schedule. Recently we have heard this news, like these two banks have been excluded. Why? After the merger. So yes, banks can be excluded from the second schedule. So this statement is wrong. No bank can be excluded from second schedule. Okay, this is wrong. And also, in the month of March, sorry, Feb, we have read this news. The Fino Payments Bank, it is included in the second schedule. So it is not necessary that only commercial banks can be listed in the second schedule of RBI Act 1934, and this statement is correct. So this is how you eliminate the options. This is how you attempt, the questions in your exam. Try to link everything you read to the concept behind the news. If you are reading about Fino Payment Bank included in the second schedule, try reading about second schedule. Try just Google it about second schedule of RBI Act, then read more about it. Is this the first class? No, no, this is not the first class. As far as GA is concerned, this is definitely not the first class. One request to everyone, please turn off your cameras. Manpreet, your camera is on, I guess. So this is your second question about the inflation target. This is a very simple one. What is the current inflation target given to RBI? And there is a band of plus or minus 2%. So what is the target? Great, great. As I said, this is a simple one. Yes, FIT or flexible inflation target, it is 4% plus minus 2. Okay. So the range is 2 to 6. Okay. Recently, this new umbrella unit, NUE, this is a news. Which of the following statements about the proposed NUE is true? Again, a very simple one. Behind the NUE, there are some concepts you need to know. There's one request, even if you don't know, try attempting. There is no harm in attempting. I'll not be giving any negative marking here. So don't worry, just try it. Yes, B is the answer. Okay. We all know about NUE and everything. This should be RBI. So this statement can be eliminated. And please read this statement. Only banks are allowed to apply for the license of NUEs. If you have read the news, like what are the companies they are, interested to apply? Like many big tech companies are applying. So this statement can be eliminated through reading this. So once you are reading Wikipedia, try to read in this way. The approach should be like this. And while reading Wikipedia, like someone was asking in the last class how to read Wikipedia as well. So while reading Wikipedia, if you are reading about this new umbrella entity, okay? So while stating like it is proposed by RBI, this is not a very important information you need to underline. We all know that this is proposed by RBI. Even if you don't know, we read it, we see it in the news many times. So this is kind of imprinted in your mind. But the things which are like kind of exception, like banks as well as these IT companies are allowed to anyway. But try marking these statements because
this is where you will be trapped in your exam. So try to mark these important statements while reading Wikipedia or any other current affairs thing you are reading. Okay? This is your first class. No issue, no issue. Okay? So the basic idea behind this NU is create an alternative mechanism in the place of NPCI. ठीक है? NPCI के जगह पे alternative mechanism रहेगा, because we all know that there is a kind of hegemony by the NPCI in this payment industry, and RBI as well as the government wants to promote this fintech kind of things in the market. So which of the following statements about Saral Suraksha Bima is true? Hemant, you are not getting what is going on. So we are simply discussing some MCQs. Those who are new, please bear in this class and try reading our monthly current affairs magazine. Then you will have an idea ki what are these things and why we are doing it. Those who are new, at least I am expecting ki you are aware of the exam pattern and everything, syllabus and everything. Okay. So in real exam scenario also you will be attempting questions like this. So just get in this class and try reading Wikipedia, start reading Wikipedia. Then you will have an idea at least. Sure, Aditi. Just before winding up the class, just remind me once. Okay. So which of the following statements about Saral Suraksha Bima is true? All of the above. Okay. Very good. All of the above. इतना तो पता है ये this should be something related to IDI because Bima is there. And rarely some examiner will put you in trap with these figures 2.5 lakh 1 crore, because these figures are not very important. So even if you don't know about these all figures, you can take a guess, because there is a less chance कि they will trap you with these figures. ठीक है? तो सरल सुरक्षा बीमा योजना है क्या? This is a standardized product, because IDI has given this standardized product, Saral Suraksha Bima Yojana, and upon this product, these insurance companies will frame their own products. So this is a frame. Okay. Minimum sum assured is 2.5 lakh and 1 crore is the maximum. So consider the following statements about Indian exports and trade related stuff with China, and state what are the statements which are true. Even if you haven't read, you can always take a guess. It is asking which of the statements are not true. So D is the answer. Okay. अभी देख लो how to attempt. Trade deficit with China.
this is something that has been in the news, or that has been a headache for India, or for that matter, any country for that matter. This has been a headache for years. So, due to this pandemic situation, do you expect that this trade deficit will decrease by 50%? It's not possible, right? We do trade like humongous amount of things with China. We do import things. So this trade deficit is not going to decrease by 50% anytime soon. Okay. And if you are aware of the news, the bilateral trade has decreased. It is not asking you know uh, whether the percentage, what kind of percentage the increment is. It is simply stating that this is significantly increased. But we know this due to this, yes, war situation and this pandemic as well, these lockdown situations, it is quite evident that this trade, bilateral trade, will fall. It will not increase at least. So these two statements can be eliminated this way. Okay. So this is the information about India's exports to China and everything. So which of the following statements about anti-dumping duty is true? Anti-dumping duty. Yes, the border issue, pandemic. Due to these all things, it is evident that the volume of trade has decreased, not increased. So, guys, try attempting this one, the sixth one, anti-dumping duty. So 1 and 3, because as someone mentioned, right? Who is that person? Vivek. As Vivek mentioned, dumping can be done by a developing nation to a developing nation. China can dump something on India, right? As it has been doing with some electronics and all. So it is not necessary that developed nation will dump to a developing nation or a least developed country. Okay? This can be done in any ways. And these two statements, WTO deals with it, and anti-dumping is it is a protectionist tariff. Okay? So basically, dumping hota kya hai? Like people may have a doubt. So dumping is, suppose this is one country and this is another country. ठीक है? Suppose इस country में again we take example of onion. ठीक है? यहाँ पे onion क्या करते हैं जो farmers हैं 12 kg 12 rupees per kg में produce करते हैं and the market price is 12 rupees per kg. And what this country one is doing is it will flood the Indian market, so this country's market, with onions of 10 rupees per kg. Okay. So this is basically dumping.
And what are the impacts? So the domestic market of the farmers, this market will be totally destroyed. Once this is destroyed, these companies exports can have a monopoly on their products. They can now make this 15 rupees per kg. Okay, this is dumping. To stop that, what the governments do is they kind of put anti-dumping duty. Suppose here the dumping should be 2 rupees. 10 plus 2 again 12. So this 12 rupees per kg, 12 per kg will be similar platform. Okay, this is anti-dumping. So what is the main objective of the DGTR, Directorate General of Trade Remedies? Yes, China has been dumping in India on electronics and many other things. Also in mobile phones and everything you will see. इसलिए इंडिया का कोई मोबाइल फोन का स्मार्टफोन का मार्केट तो था ही नहीं, but other electronics and everything, it is doing that. So DGTR बताओ. Even if you don't know anything about this organization, take a guess. It is just go by options. It is not really tough to take a guess. Yes, yes, Smriti is correct. मतलब आप नाम से भी देख सकते हो. Just give me 1 minute, guys. Yes, yes. आप नाम पे भी देख सकते हो. Like it is of trade remedies. It has nothing to do with this narcotics and stuff. If you are following news, इसके लिए अलग से है नार्कोटिक्स ब्यूरो. कोस्ट को प्रोटेक्ट के लिए there is a Indian Coast Guard and everything. So this Director General of Trade Remedies should not have anything to do with narcotics, at least. NCB is there, yes. ठीक है. So both A and B are correct. What does this organization do? It recommends imposition of anti-dumping, countervailing and safeguard duties. ये recommend करता है to Department of Revenue, and the final decision is taken by this Department of Revenue. ठीक है. Harshit, this GA class will be done this way. Topic wise is not possible ना. अभी वैसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एक टॉपिक बना के तो नहीं कर सकते. And everything I do in this class is related to the Feb or March BPDA only. Other safeguard measures आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस हैं. So which of the following duties are able to neutralize the negative effects of subsidies? Yes, wide range of topics we do cover, because I'm expecting कि you have a basic idea about things and you are
continuously reading Wikipedia. ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक है, you can go and read the concepts from our material. You can watch the videos and everything. यहाँ पर हम अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं. ठीक है, the which of the following duties neutralize the negative effects of subsidies. यहाँ पे those who have read this WTO वाला class, they can exactly smoothly. Yeah, Siladitya, there is some issue with the previous class PDFs. So I'm trying to getting those PDFs uploaded by the end of this week at least. Don't worry. हाँ बिल्कुल हर्षित, आपको सैटरडे तक मिल जाए. वीडियोस पे जो क्लासेस है कम है. रिशाली कौन सा क्लास आपको कम लग रहा है? रिशाली कैन स्पीक. सर सिलेबस चेंज हो गया है, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स इंक्लूड हो गए. कौन से एग्जाम के बारे में यू आर टॉकिंग? आरबीआई ग्रेड बी के बारे में सर. क्या टॉपिक चेंज हुआ है, मतलब क्या ऐड हुआ है? सिलेबस में कुछ ऐड नहीं है. हाँ सर, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड हो गए हैं, तो अभी तो बेसिक की नॉलेज नहीं है. This is the same for the past few years, Risali. Syllabus has not changed recently or this year. This has been the same for past few years, and our course to have everything covered. कुछ social issues में missing है, that is getting uploaded by the end of this month. Social issues में जो भी है, like this human development and multiculturalism and everything. I have taken a class before phase 2. पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है. एग्जैक्टली हेमंत. और सर डेली शेड्यूल क्लासेस का वो तो you should be getting on your what do you call it, dashboard, right? Daily schedule. नहीं है सर, डैशबोर्ड में मैं चेक करी हूँ. नहीं है. anyone can confirm कि कहाँ पे ये डेली शेड्यूल मिलता है? करण प्लीज you can speak. Please let Rishali know कि कहाँ पे ये So it's dashboard and today's online classes का subtopic, and then you can see. Got it, Rishali? Dashboard, then today's online class. ठीक है, थैंक यू. Yes, थैंक यू एवरीवन. ठीक है, हम ये करते हैं फिर. बताओ. Yes, it is countervailing duties. So CVD जिसे हम बोलते हैं, CVDs, the basic idea is तो सब्सिडीज में जो डिसएडवांटेजेस मिलता है फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट के वक्त, उसको मिटिगेट करने के लिए दिस सब्सिडीज आर यूज्ड. ठीक है. ओके, आई रियली डोंट नो दैट दिस इज योर फर्स्ट क्लास. ओके, देयर आर सम पीपल हु बेसिक नॉलेज नहीं है. I understand you guys. I really don't know that this is your first class. Okay. Yes, this countervailing duties and everything. Let me make you understand this. Suppose USA and India. Okay. तो इसमें क्या होता है, सपोज इंडिया इज गिविंग सम फार्म सब्सिडीज ऑन सोयाबीन. ठीक है, तो सोयाबीन में इंडिया फार्म सब्सिडीज देता है टू फार्मर्स.
तो सब्सिडीज में क्या होता है, द फार्मर्स आर इन एडवांटेजेस पोजीशन. सो सोयाबीन को सपोज हम 100 रुपीज पर केजी में मार्केट में बेचते हैं आफ्टर दिस सब्सिडीज एंड ऑल, ठीक है, एट लोअर प्राइस. तो इसमें क्या होता है, जब हम इसे यूएस को भेजेंगे तो सेम प्राइस में भेजेंगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्राइस कम क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडीज. विदाउट दिस सब्सिडीज इट कुड हैव बीन 150. और यूएस में क्या होता है, ये चीज 150 में पहले से मिलता है. एंड आफ्टर दिस सब्सिडीज इंडिया इज सेंडिंग दिस सोयाबीन टू यूएस एट 100. तो यूएस के जो फार्मर्स हैं वो डिसएडवांटेज में आ गए ना. तो यूएस क्या करेगा, दे विल चार्ज दिस काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन इंडियाज सोयाबीन. ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज. You do not have to know every details about this, just have an idea about everything, you know, how to appear current affairs and everything. We'll have a discussion before winding up the class. ठीक है, everything I will answer these all things before winding up the class. ठीक है, कुछ questions कर लेते हैं. So which of the following statements about Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC are true? डंपिंग में बेसिकली क्या होता है, कोई कोई अलग सा रीजन में भी वो प्राइस कम है. जैसे कि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आर यू नो इनएक्सपेंसिव. व्हाई? बिकॉज मैन पावर वहाँ पे सस्ता है, सब कुछ सस्ता है. बट यू नो इन केस ऑफ काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है. गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, जैसे पीएम किसान हो गया, थ्रू मेनी अदर स्कीम्स, फर्टिलाइजर एंड एवरीथिंग, वी आर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज. ये ऑफिशियल रूट में सब्सिडीज जाता है, तो वहां पे काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज यूज होता है. डंपिंग में वैसा कोई सीन नहीं है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज के वजह से ही द थिंग्स आर गेटिंग चीपर. ओके, तो ये देख लो आप, कस्टम्स, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, नार्कोटिक्स, बहुत सारी चीजों को देखता है ये सीबीआईसी. ठीक है, नॉट ओनली मेंट फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी. और फिनेंस मिनिस्टर का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, वी ऑल नो सीबीडीटी एंड सीबीआईसी का चेयरमैन अलग रहता है. ठीक है, and yes, it doesn't look after any kind of direct taxes because CBDT is the organization which look after direct taxes. So PM Awas Yojana calls for housing for all. By which year? Simple one. Twenty 2022. ठीक है, housing for all by 2022. Yes, that is in the news. That is the sole reason why I put that question. PM Awas Yojana urban is not true. ठीक है, which of the following statements about PM AY urban is not true? तो यहाँ पे देख सकते हो तीन ग्रुप हैं, AWS, लोअर इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप.
So this statement is incorrect. Okay, building homes for slum dwellers in collaboration with private developers is not one of its. No, it is one of its aims, right? So this should be also incorrect. So there is a mistake here. This should be both 2 and 3. These two statements are incorrect. Smriti, in the previous class I've discussed about this LIG and EWS thing कि कुछ इनकम क्राइटेरिया रहता है 1 to 3 लाख 3 to 6 लाख एंड एवरीथिंग इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से LIG MIG और EWS ये होता है ठीक है. So National Urban Digital Mission has been recently launched. Which of the following statements about National Urban Digital Mission is true? All of the above. देखो यार कोई एग्जामिनर इतना सेट करता है इतने सारे माइन्यूट डिटेल्स देके तो दिस शुड बी करेक्ट. अगर वैसा कोई बहुत ही नेगेटिव सा स्टेटमेंट या बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट ना हो तो यह है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन. यू कैन रीड मोर अबाउट दिस थिंग इन विकिपीडिया. So Urban Data Exchange has been launched in a partnership with Smart Cities Mission, and so this is a part of same news. A digital mission, Urban Data Exchange, these all things have been launched. Smart City Mission and with the collaboration of Smart City Mission and which organization this Urban Data Exchange has been launched? It is Indian Institute of Science. अब बताओ which of the following is not an objective of Competition Commission of India or CCI? इनमें से कौन सा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है? वेरी गुड. ये भी ऑप्शन से कर सकते हो. दोज हु डू नॉट नो, ट्राई रीडिंग these options. Something will feel off with respect to a single option, then you can eliminate. ठीक है. This option is not correct. Absolutely end market monopoly ये तो मतलब शायद ही किसी का ऑब्जेक्टिव होगा, ना ही तुम कर सकते हो. So about Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, which of the following statements about Asian Infrastructure Investment Bank is true? Yes, this only statement is true. 25 कंट्रीज तो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है ना. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है. So as of now 97 approved members and India is the largest contributor. एशिया में है, चाइना भी है, तो इंडिया cannot be the largest contributor. This should be the logic. So which of the following is not one of the goals of this Asian Infrastructure Bank? Not one of the goals. ठीक है.
to safeguard member nations interest in UNSC. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो यूएनएससी का साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट? सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एआईबी है क्या? तो फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, to promote regional cooperation, promote investment in public and private capital for the development purposes, to utilize resources at its disposal for financing. So basically जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो भी है ऑल ओवर द एशिया, हर एक कंट्रीज में, सो एआईबी उन्हें प्रमोट करता है, ठीक है। So in order to get the membership of World Bank Group, the country must get the membership of which organization first? This is a tricky one, please remember. पहला आईएमएफ का मेंबरशिप के बाद ही वर्ल्ड बैंक मेंबर्स का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबरशिप ले सकते हैं। City Innovation Exchange launched to promote innovation in India. This comes under which ministry? No, there is no such criteria for joining any other organization. ये peculiar है, that's the reason we study here. यह है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ठीक है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Agricultural Processed Food Products Export Development Authority, APIDA, is an apex export trade promotion government body. Which ministry? Agricultural Processed Food Products. यह कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, प्लीज रिमेंबर, बिकॉज the basic function of this is export. When it comes to export, Ministry of Commerce and Industry will be involved. Again, Marine Products Export Development Authority. ये भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। Swamitya scheme, what does the M stand for in Swamitya scheme? Survey of villages and mapping with improvised technology in village areas. Basically ये स्कीम करता क्या है? डिजिटल मैपिंग होता है हर एक विलेजेस का, एंड द डॉक्यूमेंट्स विल बी गिवन टू द विलेजेस, टू द ओनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। सब डिजिटली होता है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, स्वामित्व स्कीम। Which of the following statements about Shruti is true?
1 and 3. Why? Because if you have read the FEBS Bpedia, अभी आर्टिजन बेस्ड स्मृति क्लस्टर्स जो हैं वो शायद 50 अभी लॉन्च हुए हैं, नॉट 500. So get an idea कि how the questions are framed and how the question can be linked to the news of various previous months. So when you are coming to these GA classes, I am expecting you that you have read this month Feb onwards Bpedia. ठीक है, बाकी ये सब है स्मृति क्लस्टर्स है, MSME में है. इसमें बेसिकली होता क्या है, क्लस्टर्स बनाते हैं. इसमें लाइक कंप्लीट इकोसिस्टम विल बी देयर to support this artisans and other MSME players. पूरा इकोसिस्टम रहेगा, उसे एक क्लस्टर्स करके प्रमोट करेंगे. उसमें पूरा सपोर्ट मिलेगा जो भी MSME players हैं, starting from producing to export and everything. Swachh Tourist Destination. This is a program under which ministry? Swachh Tourist Destination. कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में इंक्लूड है. अगर ये स्टेटमेंट आपको पता होता तो यू कुड हैव सिलेक्टेड मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हेन यू आर स्टडीइंग Bpedia, इस तभी आपको जो भी चीजें ऑफ लगे कि दिस कैन बी एन एक्सेप्शन, उसे मार्क करो और याद करो. कोई फायदा नहीं है आपको एक बार वो एक स्टेटमेंट की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में है उसे रटने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो. बट ये याद रख लो, स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे कुछ मतलब दे मे कंफ्यूज यू इन दिस स्टेटमेंट. स्वच्छ टूरिस्ट है और लेकिन वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में आ रहा है, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. प्लीज अंडरलाइन एंड रिमेंबर द स्टेटमेंट्स लाइक दिस. दिस इज वेयर यू विल बी ट्रैप्ड इन द एग्जाम. एक बार आप 3-4 महीने के अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो वो सिंपल वाले क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे आप. Those who are new, I can understand this may get a little overwhelmed because आपको basics का नहीं है. Once you will get the basics, these all things will be simple for you. Don't worry. सब बताता हूँ 5 मिनट में. Don't worry. ठीक है. So UN Population Fund, this was again in news. अब बताओ, which of the following statements are true about UNFPA? yes हेमंत, करेंगे वो, डिस्कस करेंगे. बस 1-2 क्वेश्चन करके उसे करते हैं. all of the above are true. ठीक है, ये सारे सही हैं. Hunar Haats, which of the following organization conduct these Hunar Haats? Yes, Sahil is correct. Paras is correct. Ministry of Minority Affairs. ठीक है, ये Minority Affairs Ministry ये कंडक्ट करता है हुनर हार्ट्स to promote the special skills of some minority section. जो भी special skills हैं with respect to weaving, creating some artifacts and everything, उसको promote करने के लिए Ministry of Minority Affairs conducts this हुनर हार्ट्स. अभी थोड़ा वन लाइनर्स टाइप ऑफ कर लेते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2021? टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन. ठीक है, 15 मार्च को होता है. इसका थीम ये है
यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो इफ यू हैवंट रिमेम्बर्ड दिस स्टफ। यहाँ पे कुछ अप्लाई लॉजिक एवरीथिंग कुछ काम नहीं करेगा, आपको ये रटना पड़ेगा। टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन, दिस इज द थीम फॉर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वही ब्रिक्स का समिट का थीम बताओ। ब्रिक्स कॉन्टेक्ट ग्रुप, इनका मीटिंग हुआ था, इनका थीम क्या है? ब्रिक्स का जितने भी मीटिंग्स हुआ है ना, तो उनका थीम एग्जैक्टली ब्रिक्स 15 ये है, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ है? यस, इट इज उत्तराखंड। तो प्लीज रिमेम्बर, ये जितने भी फॉरेस्ट रिलेटेड या कोई स्पीसीज रिलेटेड कुछ पार्क्स और कुछ नया लॉन्च होता है, इट इज वेरी लाइकली टू बी उत्तराखंड। ठीक है, मॉस पार्क अभी लॉन्च हुआ था ना, कुछ भी ये फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ होता है, इफ यू डोंट रिमेम्बर कि कौन से स्टेट में हुआ है, तो यू कैन गो विथ उत्तराखंड। A center of excellence for the dairy sector will be set up in which state? This will be a collaboration with Denmark. This is Rajasthan. राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी सेक्टर सेटअप होगा विथ द कोऑपरेशन ऑफ डेनमार्क। ठीक है। Which state will launch the Path Pradarshak free coaching facilities for competitive exam? Yes, it is उत्तर प्रदेश। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पे फ्री कोचिंग क्लासेस करवाएंगे। पथ प्रदर्शक, द इनिशिएटिव्स नेम इज पथ प्रदर्शक, यूपी में है। ठीक है। So this is it, guys. Let us now discuss about this current affairs stuff for the new people. Okay. Those who are not new, feel free to leave the class, and I'll ensure कि आपको PDF सैटरडे तक तो मिल जाए, और नेक्स्ट कल का क्लास का PDF और जितने भी पुराना PDF पेंडिंग है आपको कल सैटरडे तक मिल जाएगा। And for those new people, now I have enabled your speakers and everything. Please ask कि आपको क्या जानना है। हाँ पूछो, स्पीकर ऑन है। Yes, Hemant, you are asking ki basic knowledge about GA and resources. See, for GA, Bpedia should be enough. ठीक है, Bpedia enough है आपके GA आपको रिसोर्स के लिए, रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड टू गेट नॉलेज, ऑफ कोर्स आपको जितने भी इकोनॉमिक्स और फिनांस के बेस्ड GA आते हैं ना, फॉर दैट यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज आपको अगर आईपीओ क्या है पता नहीं है, तो व्हेन यू रीड द न्यूज अबाउट आईपीओ, तो आपको आईपीओ के बारे में इतना कुछ समझ नहीं आएगा, वो न्यूज के बारे में समझ नहीं आएगा। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स अबाउट आईपीओ, देन ओनली यू कैन अप्रिशिएट द न्यूज। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से बीपीडिया शुरू कर दो, लेकिन ट्राई टू कंप्लीट द कोर्स कंप्लीट फर्स्ट। जितने भी कोर्स में आपके डैशबोर्ड पे जाके हर एक कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो जाओ, मार्केट्स पे, एवरीथिंग, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जो भी ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, वंस यू आर थ्रू दोज स्टफ, देन यू कैन अप्रिशिएट द न्यूज इन बीपीडिया एफिशिएंटली।
अरे यार इतने क्वेश्चंस आ गए. Next class will be for March. Yes, next class will be for March, and some concept behind, conceptual questions will be there from Feb and March. How should we plan our study? Because study plan का those who are new, there will be a class कि आपको कैसे approach करना है, क्या करना है. I don't know what happened, why you people have been included in this GA session. इंट्रोडक्शन क्लास आपका होगा, वहां पे यू विल गेट टू नो कि एवरीथिंग अबाउट द कोर्स, हाउ टू एक्सेस द कोर्स, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग. Bpedia is in your dashboard. Ninad, yeah, Bpedia is in the dashboard. या प्रीति, डिस्क्रिप्टिव का क्या वर्ड लिमिट है? आई डो नॉट हैव एनी आइडिया डिस्क्रिप्टिव का क्या सीन है. तो आप देख लो एक बार, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव क्लास में पूछ लो. बट टू डू स्टैटिक, करण डैशबोर्ड में पूरा स्टैटिक के सारे टॉपिक्स हैं. स्टैटिक मतलब आपका जो नॉलेज बेस है ना, वहां पे जाके आप इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, फिनांस, मैनेजमेंट सब कर लो, तभी जाके यू कैन अप्रिशिएट. हर्षित अनम्यूट तो है शायद, सब अनम्यूट नहीं है क्या? ओके ओके, सॉरी. Yes, for exams like SBI, PO and everything, Bpedia will be sufficient. There you need to read more about this national stuff, awards, books and everything. सर आज शाम को सुशील सर क्लास लेंगे, वो इंट्रोडक्शन का, वो सब कुछ समझा देंगे तो. Yes, introduction का क्लास है ना इवनिंग में. That is what I was telling. Introduction का क्लास है ना, तो he will make you understand everything, how to approach the exam, क्या क्या कोर्स हैं, कैसा पढ़ना है, ठीक है. और तभी जाके आप समझ पाओगे कि क्या सीन है पूरा. डोंट वरी अबाउट दैट. बट सर इंट्रोडक्शन के क्लास का शेड्यूल सबको नहीं आया, बिकॉज आई एम आल्सो न्यू टू दिस क्लास एंड मेरे ऑनलाइन क्लास में तो देयर इज जस्ट वन क्लास व्हिच वाज योर्स, और आज की कोई और क्लास शेड्यूल नहीं है. अच्छा, आपको शेड्यूल नहीं आया? Yes, sir. सर Yes, इंट्रोडक्शन क्लास तो जरूरी है ना. हम लोग कैसे करें? हम लोग बहुत न्यू, ये सब टॉपिक्स हमको नहीं पता. कोई एक्सप्लेन करेगा तभी समझ में आएगा. yes, I do understand. अभी देखो यार, मुझे ना मैं काम करता हूँ. Let me talk to someone about this introduction class. I don't know why you people haven't got it. सर अगर नहीं समझ में आ रहा तो मनी रिफंड हो जाएगा. Yes, don't worry about that. हाँ आपको सर. आपको समझ आएगा यार. ये इंट्रोडक्शन क्लास नहीं हुआ है, इसीलिए यू आर फीलिंग ओवरवेल्म. डोंट वरी. सर yes. सर जैसे कि अभी आरबीआई फेज 1 तो जैसे अभी नवंबर वगैरह में होगा, तो जो जैसे कि करंट अफेयर्स है, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एवरीथिंग, डू वी नीड टू रिमेम्बर दिस फ्रॉम फेब्रुअरी इटसेल्फ, और हम लोग नहीं, कोई जरूरत नहीं है. इफ यू आर एमिंग एट आरबीआई ग्रेड बी ओनली, तो उसके पहले का 3 मंथ वो कर लेना. अभी से वो डे वे सबका करना नहीं है. हाँ, तो सर अभी जैसे आप करंट क्लासेस आप मतलब बीपेडिया के थ्रू पे बेसिस पर आप कर रहे हो, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिलहाल क्या हम लोग बीपेडिया को जो पढ़ेंगे तो सिलेक्टिवली पढ़ेंगे शायद से, लाइक जो देखो अभी ना, आई रियली होप कि आप यू आर नॉट टारगेटिंग ओनली आरबीआई. अभी नाबार्ड इज अराउंड द कॉर्नर. नाबार्ड मई में होगा, राइट? यस सर. नाबार्ड ग्रेड ए को टारगेट कर रहे हो तो पूरा बीपीडीआई पढ़ लो, क्योंकि वो भी 3 महीने का पूछेगा. मई में अगर नाबार्ड होता है तो आपको फेब से ही पढ़ना पड़ेगा ना. तो बीपीडीआई का कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग कर लो आप. अच्छा, ओके सर. Sir, how about the banking awareness part and the? Sorry, your voice is breaking, Ahan. The banking awareness part. Again, your voice is not coming properly. आप टाइप कर लो एक बार. सर शुरू में जीके इज इम्पोर्टेंट और नॉट जनरल अवेयरनेस.
करंट for अफेयर से ज्यादा जीके इम्पोर्टेंट है क्या सर? for अभी which फास्ट exam फास्ट you are हम शुरुआत सर अभी हम फास्ट फास्ट शुरुआत की है पढ़ने की, तो okay, so you are aiming at RBI or which exam? आरबीआई RBI है ना, तो आप अभी से बीपीडिया शुरू कर लो, ठीक है। बीपीडिया शुरू करने में क्या होता है ना, अब यू आर अवेयर ऑफ द न्यूज एटलीस्ट, देन यू गो टू द डैशबोर्ड एंड वहां पे जितने कॉन्सेप्ट वीडियोस है ना, वो कॉन्सेप्ट वीडियोस को खत्म करो, उसमें पूरा सिलेबस खत्म करो, तभी जाके यू कैन अप्रिशिएट द न्यूज इन बीपीडिया। सर तो हम लोग लाइव क्लास अटेंड करें कि नहीं करें, क्योंकि हमको तो बेसिक ही नहीं पता है अभी तक। नहीं, लाइव क्लास विद रिस्पेक्ट टू जीए दैट इज योर चॉइस, बट मैं बोलता हूँ कर लो, क्योंकि आप वैसे भी इतना टाइम तो जाता नहीं है, और आप अगर इफ यू हैव द टाइम आप कर लो। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। नेक्स्ट क्लास में मैं इंश्योर करूंगा कि कुछ ऐसा वन लाइनर टाइप आता है ना जैसे जीए में, तो वैसा क्वेश्चंस में इंक्लूड करूं जो आपको यू नीड टू रिमेम्बर दो स्टफ। ये कॉन्सेप्ट क्लास तो आप वैसे भी फेज 2 में यू विल फेस। सर यस हेलो सर। सर आप जो क्लासेस लेते हो बीपीडिया, सर अभी जो हमारे बीपीडिया के क्लासेस चल रहे हैं ना सर, सर तो हम फर्स्ट मतलब जो स्टार्ट किए थे सर, तो हम हर वीक के लेते थे सर, फिर अभी क्या हो गया, फिर बीच में सर अभी आप फरवरी मार्च के कंबाइन ले रहे हो, तो सर वो जंपलिंग हो रहा है सर, मतलब जंपलिंग हो रहा है एक्चुअली। नहीं देखो यार, आप फेब का तो पढ़े हो ना? सर पूरे नहीं पढ़े, मतलब फर्स्ट 2 वीक्स के पढ़ना हुआ, तो फिर आपने मतलब फरवरी मार्च कंबाइन किया ना, तो फिर पढ़ लो यार, कितना टाइम लगता है, एक हफ्ता तो पढ़ा है आपने। एक्चुअली वो मिनिमम 33 से 35 पेजेस की बीपीडिया रहती है, पूरा करना थोड़ा ये हो गया था। देखो यार पढ़ लो, क्योंकि मैं आप फेब तक एटलीस्ट कंप्लीट कर दो ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है ना वो मैं फेब से ले रहा हूँ, और मार्च का मैं वन लाइनर ले रहा हूँ। वन लाइनर आप यहाँ पे ना भी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा। 150 क्वेश्चंस वी डू प्रोवाइड, राइट सर? यस सर ये एफसीआई का एजीएम का जो एग्जाम है उसके लिए, और यहाँ पे कंबाइंड क्लासेस हो रही है, लाइक आरबीआई नाबार्ड और सारी क्लासेस कंबाइंड है, तो एफसीआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ना चाहिए? और उसका एग्जाम भी अभी मई या जून में आ जाएगा। नहीं अभी ना विथ रेस्पेक्ट टू जीए ही कंबाइंड क्लास हो रहा है ना, जीए तो सब में सेम है, सबने सेम ही आना है। यस जीए तो सब में सेम है, इसीलिए कंबाइंड ले रहे हैं। बाकी आपका जितने भी स्पेसिफिक टॉपिक्स है उसका तो अलग ही क्लासेस है। ओके सर आरबीआई ग्रेड बी का नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? सॉरी, आरबीआई ग्रेड बी का नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन होगा तो भी वो अक्टूबर नवंबर में शायद नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन अच्छा, अभी तो इतने रिसेंटली कुछ नहीं होने वाला है। उसमें सर ये करंट अफेयर मतलब कब से कब तक का पढ़ना जरूरी है? करंट अफेयर्स आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप 6 महीने का कर लो इफ यू हैव लग्जरी ऑफ टाइम। अगर नहीं है, ये जो वन लाइनर टाइप है ना, ये किसने कौन सा अवार्ड जीता, किसने कौन सा बुक लिखा, ये वाला न्यूज आप 3 महीने का कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए हर चीज में, क्योंकि इस साल का अगर किसी ने पेपर दिया है यू मस्ट नो कि वो कैसे कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आप ये जीए क्लास अटेंड करो, वहां पे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के बिहाइंड का कॉन्सेप्ट पे बेस करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसमें ना आपका अगर आप एक बार आप पूरा कोर्स कंप्लीट भी किया हो ना, एक टाइप का रिवीजन हो जाएगा। सर यस सर जो और मैं कहीं और से करंट अफेयर्स कर रहा था, वहाँ का सर मटेरियल बहुत बल्की है, यहाँ बीपीडिया में सर जो शॉर्ट में है वो सर इनफ हो जाएगा क्या? व्हिच एग्जाम यू आर टारगेटिंग? मोस्टली बैंक एग्जाम्स वाले। देखो अभी ना एग्जाम से पहले का जो 3 महीना है उसमें अगर चाहते हो तो आप वो बल्कि मटेरियल्स कर दो, ठीक है? ओके सर। अगर बहुत टाइम जाएगा, लेकिन उसमें आप देखना कौन सा एग्जाम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। सपोज वी आर अटेम्प्टिंग नाबार्ड, ठीक है, उसमें जीए का 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन के लिए आप अभी 600 पेज पढ़ोगे, मतलब उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है ना। 20 क्वेश्चन के लिए आप बीपीडिया कंप्लीट करके जाओ, और ईएसआई सेक्शन में तो वी डू हैव मटेरियल्स, एंड ये ईएसआई में ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा जैसे क्वेश्चंस हम डिस्कस किए ना आज, ईएसआई में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एग्जाम को पकड़ लो, वहां पे देखो कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा मिलेगा। 20 क्वेश्चंस के लिए आप 1200 पेज का वो मटेरियल पढ़ते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। ओके सर।
ऑल्सो सर, अगर अब जैसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो अगर हम फेज 1 में स्पेसिफिकली फॉर सेबी एग्जाम अगर क्वांट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम जीके इंग्लिश और उसमें रीजनिंग में ज्यादा श्योर है, सो इज इट ओके कि अगर हम कोई एक सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन अटेम्प्ट ही ना करें? देखो सेबी का ना इस साल का ये था, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर दे आर डेफिनेटली चेंजिंग द पैटर्न। इस साल का इन्होंने सोचा नहीं था कि इतने बंदे हो जाएंगे। यू नो कि 12 13,000 पीपल रोट मेंस। So next year का ना ये definitely they are going to change the pattern. They will only let 2,000 people write mains. ये 13,000 वाला सिस्टम नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा। ये इस साल का उनका ब्लंडर था। तो आप वो मान के ये अभी अभी ना ये आरबीआई और नाबार्ड का जो पैटर्न है ना उसको मान के चलो, वैसा ही कुछ होगा वहां पे। मतलब कि they'll introduce sectional cut off once again. सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, और वो वाला नहीं है जो ओवरऑल 40 क्लियर कर दो तो आप सब मेंस लिखोगे, वो वाला सीन भी नहीं रहेगा वहां पे। अच्छा, एंड सर अगर जनवरी में एग्जाम है, क्योंकि अभी वैकेंसी का कुछ शो नहीं है, तो इन केस नवंबर में आती है, तो मतलब जीके अभी अगर जैसे जो ऑनलाइन क्लासेस और ये सब हो रही हैं, तो अगर आई एम अटेंडिंग दोस, तो जीके बीपीडिया से कब से अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पढ़ना, मतलब अभी तो बहुत टाइम है क्योंकि 6 months अभी 6 months बिफोर द एग्जाम इज नीडेड। अभी से वो बैठ के मत पढ़ना कि वो बुक किसने लिखा, इफ यू आर अटेम्प्टिंग आरबीआई ओनली। नो सर, आई एम अटेम्प्टिंग सेबी ओनली। ओके, सेबी ओनली, तो सेबी से पहले का 6 महीना का करो जीए। तो सर मतलब अभी जीके में टाइम इन्वेस्ट ही ना करूं? नहीं, आपका वो बेसिक्स क्लियर है, जितना भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरीथिंग दैट इज क्लियर, राइट? So mostly because I'm a law graduate and also a company secretary. So basic I know. हाँ, बेसिक क्लियर है ना, तो उसमें आप आई वुड रिकमेंड कि आप वो फिनेंस एंड बैंकिंग इकोनॉमी पार्ट वो ढंग से कर लो, एंड इफ टाइम परमिट्स वो नेशनल वाला कर लो, जो बीपीडिया में है ना 3 सेक्शंस, पहले का 3 सेक्शंस। ओके, एंड डेली करंट अफेयर्स पे अभी इतना फोकस नहीं करूं फिर? नहीं, डेली अभी अब से क्यों करना है, इफ यू आर टारगेटिंग सेबी फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ओके सर, थैंक यू। या एनीवन एल्स? अभी नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ बताओ। Sir, I'm preparing for FCI AGM technical. So the questions that we discussed today in the class are basically, I felt that those questions are related to banking. So are these questions are relevant for the FCI AGM technical? AGM technical में क्या है, मतलब पेपर्स क्या हैं फेज 1 में? सर उसमें तो ज्यादा ये एग्रीकल्चर, इंटर्मोलॉजी, ये सारा पेपर्स आता है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ये सब आता है, और करंट अफेयर्स का है उसमें पूछा है, बट उसका सिलेबस कुछ प्रेस्क्राइब नहीं है। देखो करंट अफेयर्स है, प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस तो देंगे ही नहीं, तो इसमें ये होता है ना, एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी कवर्ड। तो लेकिन आई एक्सपेक्ट कि वो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस ही पूछेंगे, इतना वो कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछेंगे। तो यू कैन डू वन थिंग, गो टू योर डैशबोर्ड एंड डाउनलोड दोस 75x2 वाला पीडीएफ। उसमें जितने भी वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस है ना, वहां से प्रैक्टिस कर लो, और पूरा बीपीडीएफ तो पढ़ना ही है। Okay, so sir, do I need to focus on these questions like basically जैसे कि आप जो समझाते हैं खास करके मिनिस्ट्रीज या कोई डिपार्टमेंट के बारे में, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ने से ही मुझे उनके जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझ में आएंगे, क्योंकि पूरा तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो अभी इफ यू आर क्लियर ऑन बेसिक्स ना, तो इसमें सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स का तो करंट अफेयर्स में शायद ये नहीं पूछेंगे, अगर करंट अफेयर्स मतलब मिला के वो मेंशन किए ना सिलेबस में, तो ये नहीं इतना डिटेल में वो कॉन्सेप्ट में नहीं पूछेंगे। बस आप वो वन लाइनर टाइप करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, यही yes, everyone there? नेट चला गया था मेरा। Guys, you all can hear me?
तो और किसी को कुछ जीए के रिगार्डिंग पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो। NABARD oriented questions in upcoming classes. Subhankita, yes, I'll try. ARD schemes. ठीक है करते हैं। आरुषि, वन लाइनर का जो है ना, दोज पार्ट्स यू नीड टू क्रैम, उसका 150 क्वेश्चंस है आपके डैशबोर्ड में, वो आप देख लेना। यस, एनीवन एल्स? नॉट डेली बेसिस, वीकली हम 2 क्लास लाइक ऑन दिस फॉर्मेट, एमसीक्यू फॉर्मेट में करते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद यस, एवरीथिंग विल बी क्लियर। आपका इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ क्यों नहीं है? आई नीड टू आस्क समवन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, प्राज्वल, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। एक बार अब माइक पे पूछ लो। Sir, means I was asking, so some questions are there, no? So banking and financial awareness, terms related to banking or banking and other thing. So that also you are going to cover, sir? ये ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में ही होगा ना। सपोज टर्म्स रिलेटेड टू बैंकिंग एज यू सेड, तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में हम डिस्कस करते तो हैं, लाइक दिस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड एवरीथिंग, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास। Yes, we are doing like this. Means I was saying that like a specific class I was asking about specific class for these terms, like you are asking this ना? Yes sir. ठीक है, इसका ना अगर आपको नीडेड है तो आप मेल डाल दो एक, तो उस पे कोई पर्टिकुलर फैकल्टी आपका एक क्लास ले लेंगे, नहीं तो मैं ले लूंगा, किसी पे कोई भी ले लेगा। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर डिमांड है ना, आप जस्ट सेंड अ मेल। Okay sir, thank you. Yeah. Either class or maybe notes. हाँ बिल्कुल, आप मेल डाल दो, क्लास या नोट्स कुछ तो हो जाएगा उस पर। ठीक है, anything else also guys? Regarding the editorial part. Yes sir, regarding the editorial part, like how do we access editorials or specific editorials which are like relatively required for RBI grade B? Editorials in newspaper you are asking, right? Yes sir, newspaper one. ठीक है, आप कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करते हो? पहले रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते तो हो ना? Yes sir, Economic Times, The Hindu, and like online resources. Very good. Since how many days you are following these newspapers and all? It's been 4 years now, sir. अभी यार आप 4 साल से पेपर पढ़ रहे हो, तो you are the best person to judge ना, कि कौन सा एडिटोरियल आपको हेल्प करेगा। If you are not अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा टॉपिक हेल्प करेगा, I would recommend कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़ लो एक बार, फेज 1 फेज 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़ लो, then you see कि what kind of questions are being asked, तो उस पे आप एडिटोरियल को लिंक कर सकते हो। You are the best judge. ठीक है? Yes sir. Yeah. 4 साल से पढ़ रहे हो, मतलब I am assuming कि you are an UPSC aspirant. Not really sir. Okay, ठीक है। Generic reading. Very good. हाँ, अभी देखो ये 7 rules to read newspaper वीडियो है, यूट्यूब पे है,
you can just Google it and वहाँ पे देख लो एक बार. आप ना एक बार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे ना, फिर देन यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग एंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर रिलेवेंट टू आवर एग्जाम. ठीक है. Anything else, guys, with respect to GA and ESI and stuff? So nothing. So guys, let us wind up the class now. ठीक है, कल मिलते हैं 7 PM में क्लास है again on this format. Thank you, sir. Yeah, sir, kindly check for the introduction class. For the introduction class, and as we have not received the schedule for that. हाँ. I'll talk to the relevant person regarding this. Introductory class का आपको notification नहीं गया है, ठीक है? Yes, sir. आज रात 9:30 बजे सुशील सर करेंगे ऐसे बोल रहे थे. 9:30 बजे. हाँ, ऐसे बोल रहे थे. अच्छा. नहीं, ऐसा कोई शेड्यूल तो अभी तक है नहीं, इसीलिए मतलब ऐसा शेड्यूल अभी तक कोई बना नहीं. आई एम जस्ट चेकिंग द शेड्यूल राइट नाउ. वैसे कोई शेड्यूल है नहीं. ईमेल पे भेजेंगे ऐसे बोल रहे थे. अच्छा, मेल पे अगर भेजेंगे तो देखना आप सबको मिल जाएगा, वो आप अटेंड कर लेना. हाँ सर. ठीक है. नहीं अनिर्बन, आप पूरा कोर्स कंप्लीट करो यार, पूरा स्टैटिक, पूरा सब कुछ नॉलेज बेस्ड पूरा कंप्लीट कर दो सिलेबस. देन आप प्रायोरिटाइज करके रिवाइज कर सकते हो. आप सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लो ना, अब तो इतना टाइम है, उस पर भी चूजी मत बनाओ, सारा कवर कर लो. चलो गाइज, हैव अ गुड डे. लेट अस वाइंड अप द क्लास. लेट अस मीट टुमारो इवनिंग. ठीक है, चलो बाय.